A grand welcome to everyone. So hello everybody. It feels glad that we are going to start our fourth lecture for gravitation, the first chapter of our standard 10th from state board and the 8th chapter I think from our standard 9th NCERT board, and regarding 11th and 12th also it is very important topic regarding NEET and JEE too. So a very useful chapter for all of us. So friends, hi everyone, I can see them. Yeah, everyone, I can see they on the screen. Everyone is live. Hi everyone. Yeah, the friends from Kinwat, Latur, the students from Nanded branch, every student of Manaspura group of institution, you are welcome over here. Yeah, from Kolhapur too. Okay, hi everyone. So I think let's start the video right now. Okay, so I think let's start our class. शुरू करते हैं. So in the previous classes, what did we study? We studied about the statement of gravitational force. We studied about the universal law of gravitation. We studied about the role of Newton, the geocentric theory, heliocentric theory. Then again we studied about Kepler's laws of motion. We learnt about Tycho Brahe. And after all these things, after studying Kepler's laws of motion too, then we had stopped our class on relating the इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स और इनवर्स स्क्वायर लॉ, इन दोनों में रोल क्या होता है वो आज के क्लास में हम देखेंगे. सो व्हाट इज द रोल बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ. इन दोनों का क्या देखना है हमें? रिलेशन स्टडी करना है. क्या स्टडी करना है? रिलेशन. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? So who will tell me? Okay, just don't tell me, just imagine that what is the relation in between these. So on the very first day I had told you that if you remember very well, while deriving the universal square law, I had told you this force is inversely proportional to square of distance. हाँ, हमने पहले दिन बताया था. Suppose that let us talk once again. These are the two masses which are separated by a distance r, capital R let's say, or capital let's say d, distance d. This is mass m1 and this is mass m2 and these two are separated by a particular distance over there. तो इन दोनों के बीच में जो एक्ट होने वाला फोर्स है, अगर मासेस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास का प्रोडक्ट होगा. लेकिन जब हम इन अकॉर्डेंस ऑफ डिस्टेंस कह रहे हैं तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब डिस्टेंस जितना कम उतना फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना फोर्स कम होगा. सो रिमेंबर दीज टू मासेस and the force in between these two masses is inversely proportional according to the square of distance between them. ये हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था. So now relating this statement, let us suppose that if, अगर यहाँ पे हम अभी कुछ कंडीशंस देखते हैं. पहली कंडीशन देखेंगे, our first condition, if the distance is doubled. क्या किया आज हमने? if the distance is doubled. होप सो आप सब लोग देख सकते हैं. इफ द डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस डबल किया मतलब क्या किया हमने वहां पे? इसको ट्वाइस ऑफ आर लिया. इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, पे अटेंशन ओवर हियर. सो इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस देन इन द स्टेट ऑफ 2r? लेट अस कंसिडर दैट द न्यू फोर्स एक्टिंग इज एफ डैश. अभी न्यू फोर्स एक्टिंग क्या होगा हमारा? एफ डैश होगा. सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एफ डैश? एफ डैश इज इक्वल टू, f dash is proportional to 1/2 of r का स्क्वायर होगा, है ना. सो नाउ फ्रॉम दीज टू रिलेशंस, अभी एक हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लो मेरा, ये इक्वेशन 2 मान लो. अभी इन दोनों को अगर हम रिलेशन में लेते हैं, जस्ट सपोज कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, f डैश अपॉन f इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 1/2r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/r.
अभी वही कोरिलेट करना है इसको, हमें क्या कर सकते हैं अभी हम इसमें कोरिलेट, जस्ट नाउ फर्दर अहेड 1/4r² डिवाइडेड बाय 1/r। सो इसमें से क्या होगा, नाउ लेट अस हैव एन इमेजिनेशन ओवर देयर कि बाद में आगे चल के, सॉरी ये r² है, आई फॉरगॉट टू राइट इट ओवर हियर, ये r² है। सो r² विल गेट cancel. After cancelling these terms, what will we get here? So f is equal to, sorry, f dash upon f, which is equal to, क्या कैंसिल हो रहा है, दिस r², यहाँ पे इनवर्स में जाके क्या होगा, 1/4r² इंटू r² बाय 1 r² गेट्स कैंसल। सो f dash of f is equal to 1/4, that means that f is equal to 4 times f dash. So if f by 4 is equal to f dash, so ये होगा हमारा फाइनल वन। ओके स्टूडेंट्स, दिस शुड बी आवर फाइनल वन। सो हम इसे लिखेंगे, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड देन द फोर्स बिकम्स लेसर by 4 times। क्या बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज डबल्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स लेसर बाय 4 टाइम्स। इसे हम क्या कहेंगे, इन अदर वर्ड्स बिकम्स 1/4, दैट इज इट बिकम्स 1/4, दैट इज इट बिकम्स 1/4। एक बार फिर से देख लो, इफ द डिस्टेंस इज डबल, ट्वाइस आर लिया है, तो f डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 ऑफ r का होल स्क्वायर। देन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 1, इक्वेशन 2 and 1 को हमने डिवाइड किया, f डैश अपॉन f इज इक्वल टू 1/2r का स्क्वायर अपॉन 1/r² इज इक्वल टू क्या होगा, 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r² आएगा। वी ऑल नो दैट जो अभी डिविडेंड में है वो बाद में क्या होगा, यहाँ पे इनवर्स होके उसका मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इधर r² गेट्स कैंसल, f डैश अपॉन f इज इक्वल टू 1/4, विच मीन्स दैट मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, f इज इक्वल टू 4f डैश। इट फर्दर अहेड, उसे आगे क्या करेंगे हम, इस 4 को इधर ले जाएंगे, f को डिवाइड करेगा वो, दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर न्यू फोर्स, मतलब हमारा नया फोर्स f डैश इज इक्वल टू f/4 होगा। इट मीन्स दैट इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर हमने डिस्टेंस डबल कर दिया, देन द फोर्स बिकम्स लेसर बाय 4 टाइम्स। इट मीन्स एक्चुअल फोर्स जो था हमारा, एक्चुअल फोर्स का 1/4 मिलेगा। न्यू जो फोर्स होगा, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड देन द न्यू फोर्स इज 1/4 ऑफ द एक्चुअल फोर्स। एक्चुअल फोर्स का क्या होगा, 1/4 होगा। ओके, सो दिस वाज आवर केस 1। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट केस 2। बिफोर दैट राइट इट डाउन। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको लिख कर लेना अच्छे से। So after completing this portion, now let us move further ahead to our second case. अब इसमें हम देखेंगे if our distance is half, मतलब अगर हमारा डिस्टेंस जो है, पहले जो r था उसको r/2 अगर कर दे, हम डिस्टेंस हाफ कर दे, अगर हमारा डिस्टेंस हाफ किया जाता है तो what happens, that let us study right now. So मान लो स्टूडेंट्स, if our distance is now made half, अगर डिस्टेंस अभी हाफ करना है हमें r/2 लेना होगा। if the distance is half, it means that actual distance क्या होगा हमारा, r/2 होगा। then same conditions, f dash is equal to क्या होगा अपना 1/r/2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लेंगे फिर अभी हम, सेम कंडीशन, f dash अपॉन f इज इक्वल टू 1/r² अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1/r²। ये r² ऊपर जाएगा, क्या होगा फिर यहाँ पे, वी ऑल नो दैट सेम, लिटरली यही लिखता हूँ मैं इसको, f डैश अपॉन f इज इक्वल टू, अभी जब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, r² इंटू 4 अपॉन r²। r² गेट्स कैंसल, f डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है, डिनोमिनेटर का f इधर आएगा,
4 times of force. It means that the new force is actually 4 times of F. So therefore, if the distance is half, या डिस्टेंस को हम अगर 1/2 लेते हैं, then force becomes 4 times or it increases 4 times of actual force. मतलब अगर डिस्टेंस हम हाफ कर रहे हैं, if we are making the distance half between the two particles, then the gravitational force becomes the 4th times. चार गुना बढ़ जाता है. So this is our second case. 1 मिनट के लिए पॉज करके इसे लिख लो. सो गाइस अभी हमने देखा कि डिस्टेंस को डबल किया और हाफ किया तो क्या होता है, लेकिन अभी आपको होमवर्क में करना है. रिमेंबर, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, होमवर्क में क्या करना है आपको, ऑन योर ओन इसको डिस्कस करना है. उसके बाद ऑन आवर एप्लीकेशन आप मुझे ये सब होमवर्क के असाइनमेंट्स इसमें आप सबमिट कर सकते हो. सो इन होमवर्क लेट अस सपोज दैट इफ द डिस्टेंस इज increased, if the distance is increased by 3 times, मतलब r की वैल्यू क्या लेना है अभी आपको यहाँ पे 3r लेना है. if the distance is increased by 3 times. और एक सेकंड केस आपको स्टडी करना होगा. if the distance is made 1/3, if the distance is made 1/3, मतलब न्यू डिस्टेंस जो होगा r की वैल्यू r/3 लिया है. एक 3r और दूसरा r/3, दोनों r की वैल्यूज आपको लेना है और इसको आपको असाइनमेंट के सेक्शन में सबमिट करना है सॉल्व करके. ओके, सो दिस इज फॉर योर होमवर्क्स और होम असाइनमेंट्स. सो नाउ फर्दर अहेड लेट अस मूव. चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट द units of gravitational force. अभी gravitational force का यूनिट क्या है, we have to study about it. So how is the formula given to us? We know that we have the formula F is equal to G into m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये क्या है हमारा फॉर्मूला है. सो अभी इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट्स ओवर हियर. तो इस फॉर्मूला को मैं रीअरेंज करता हूं. मान लो ये हमारा इक्वेशन 1 है, फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, क्या मिलेगा, r स्क्वायर इधर आ जाएगा, f into r स्क्वायर इज इक्वल टू g into m1 into m2. फिर अभी और इसको रीअरेंज करेंगे, g इज इक्वल टू क्या होगा, फिर m1 m2 इधर आ जाएगा, f into r स्क्वायर अपॉन m1 m2. ये आएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ लेट्स सपोज दैट लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर. जब हमें अभी g की वैल्यूज निकालना है यहाँ पे, तो लेट्स पुट द SI यूनिट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. हर एक वैल्यू के हम SI यूनिट्स पुट करेंगे. g इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट इज हियर यूनिट फोर्स. इसमें अगर हमें पुट करना है तो मान लो कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, न्यूटन में गिनते हैं. हमारा डिस्टेंस m मीटर स्क्वायर में गिना जाता है अपॉन m1 मास kg मास 2 kg. इट मींस दैट g is equal to न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg², जिसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ Nm²/kg²। ये हुआ मेरा SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वेशन नंबर 3 आ रहा है समझ में। SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स।